চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগীর মৃত্যুর পর চিকিৎসকের ওপর আক্রমণ বা গালিগালাজ একটা রীতি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে ইদানিং। কোনো কিছু যাচাই না করেই নানানভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে চিকিৎসকদের। রাজধানীর ধলেশ্বর স্থিত এক বেসরকারি নার্সিংহোমে শল্য চিকিৎসা হয় খুকুরানী রায় নামের এক মহিলার, বাড়ি উদয়পুরে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করেই গল ব্লাডার অপারেশন হয় খুকুরানীর। অপারেশন সফল হওয়ার পরে রোগীর পরিবারের লোকেদের সামনেই রোগীকে বের করে অন্য রুমে রাখা হয়। অপারেশনের পরের ভোররাতেই আচমকাই মৃত্যু হয় খুকুরানীর। এই নিয়ে নার্সিংহোম ও শল্য চিকিৎসকের সাথে বচসা বাঁধে রোগীর পরিবারের লোকেদের। শল্য চিকিৎসার জন্যই মৃত্যু হয়েছে খুকুরানীর, এমনই অভিযোগ তোলেন ওনার পরিবারের লোকেরা। ডাক্তার অমিত কুমার সিং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে অপারেশনের পর উনি কথা বলেননি রোগীর আত্মীয় পরিজনের সাথে। 7টা অবধি অপারেশন করছে, 7টা সোয়া 7টা। এরপর অপারেশন করার পরে আধা ঘন্টা পরে আবার রুগী আনার পরে কইছে যে এখানে মানে আমরা রুগীর পেশেন্ট পাঠিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা 2-4 জন দেখছি, কিন্তু সবাই দেখতে দিছে না। তো তখনও রুগী কিন্তু সেন্স হয়েছে, শুধু চোখটাই মেলছে, আদারওয়াইজ কিছু করতে পারছে না। তো এইভাবে দেখে আমরা 10টা অবধি এখানে আসলাম। এরপর ভিতরে এলাও না, তারা দেখবো, তারা সব কিছু করবো। তো জুনিয়র ডাক্তার নাকি এখানে আছে, তাই নিয়ে ইনভেস্টিগেশন আছে। আর যে ডাক্তার অপারেশন করছে উনি অপারেশন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারোর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করছে না, পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করছে না, কথা বলছে না। উনি সোরের মতো লিফটে দিন নামে বাইরে গেছে গা। আবার রোগীর আরেক নিকট আত্মীয় স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেন যে গলব্লাডার ও পাথর তাদের দেখানো হয়েছে। এটি স্পষ্ট রোগীর মৃত্যুর পর তারা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বা চিকিৎসকের ওপর রোগীকে না দেখানোর মিথ্যে অভিযোগ আরোপ করেন। গলব্লাডারে স্টোন হলো আর পিত্তনালীতে স্টোন হয়েছে এবং স্টোনটা বাইর করছে, আমরা দেখছি, আমাদের কাছে এখন ভিডিও আছে ওই স্টোনের ইয়েতে। কিন্তু ডাক্তার বলেছিল সাকসেসফুল হয়েছে। বাড়ি কোথায় হলো? ওনার বাড়ি উদয়পুর। এদিকে ডাক্তার অমিত কুমার সিং খুকুরানীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে গলব্লাডার অপারেশনের জন্য খুকুরানীর মৃত্যু হয়নি। খুকুরানীর মৃত্যু হয়েছে হয়তোবা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। রোগীর মৃত্যুর পর পোস্টমর্টেম করার কথাও বলেন তিনি। আর তখনই বেরিয়ে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। 10-10:30 बजे रात के आसपास हमारे एनेस्थेसिया के डॉक्टर ने भी उनको पेशेंट को अच्छे से देखा, एग्जामिन किया। पेशेंट अच्छे से एनेस्थेसिया इफेक्ट से बाहर आके उनका पैरामीटर सारे स्टेबल थे। पेशेंट ओवरनाइट अच्छा चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट मतलब पैरामीटर्स भी सही था, आवरली यूरिन आउटपुट, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सब कुछ मेंटेन कर चल रहा था। 3 बजे से 4 बजे के बीच में पेशेंट धीरे से, या जैसा कि आरएमओ डॉक्टर का कहना है कि वहाँ पे उनका पेशेंट का सेचुरेशन और तकलीफ़ और चेस्ट का कॉम्प्लिकेशन इतना तेज़ी से और इतना फास्ट उनका हुआ कि पेशेंट को वो लोग, जब तक कि उनको पेशेंट को लास्ट जो सीपीआर और उसका रिससिटेशन और जो प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो कर रहे थे। मीनवेल उन लोगों ने घर वालों को बुलाया और उसी बीच में उन लोगों ने घर वालों को कहा कि पेशेंट का अवस्था आपका बहुत क्रिटिकल है, अगर आपको लगे तो आप बाहर जीबी में ले जा सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जो है, यहाँ हमारे राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। और मीनवाइल पेशेंट कोलैप्स कर गए। मुझे ये खबर पेशेंट के कोलैप्स होने के बाद मुझे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से कॉल आया और फिर मुझसे कहा गया कि मैं घर वालों से मिलूं या बात करूं। तो फिर मैंने फ़ोन पे घर वालों से बात किया, एश्योर किया, और उनको वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों पेशेंट मरा इस तरह से। तो देखो, यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट के साथ हुआ उसका मुझे काफ़ी अफसोस है, दुख है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन के बाद कोई पेशेंट एक्सपायर करे तो वो ऑपरेशन के सर्जरी के वजह से ही हुआ हो। बहुत सारे कारण होते हैं पेशेंट के डेथ होने का। जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में मेरा अनुमान है कि कोई कार्डियक कॉज के वजह से उनका हार्ट फेलियर या ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसके लिए एग्जैक्ट जानकारी के लिए ऑटोप्सी ही, मेडिको लीगल ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम ही एकलौता पुख्ता और एक्यूरेट जरिया है जानने का। तो मैंने खुद उनके घर वालों को ये भी कहा कि अगर आपको डाउट लगता है कि ऑपरेशन की वजह से या ऐसा किसी कारण से पेशेंट का जान गया है, तो आप चाहो तो ऑटोप्सी
के लिए बोल सकते हैं। तो फिर पुलिस प्रोसीडिंग के बाद पेशेंट का ऑटोप्सी भी हुआ, जिसका रिपोर्ट अभी अवेटेड है, पर इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ कि हमारे सर्जरी के तरफ से उनका पेशेंट का जान नहीं गया, क्योंकि साधारण तौर पे अगर पेशेंट का ऑपरेशन करने के 12 घंटे या 1 दिन के अंदर में किसी पेशेंट का जान जाता है तो वो मेनली ब्लीडिंग होने के वजह से, एक्सेसिव ब्लीडिंग होके पेशेंट का जान जा सकता है। इस ऑपरेशन में हमने पेट में और कॉमन बाइल डक्ट में दोनों में 2 पाइप दिया था, एक पित्तनली में टी ट्यूब दिया था लेप्रोस्कोपिकली, और एक पेट में HRPM में भी एक रोमो एडिसन 28 नंबर का ड्रेन दिया था, जिसमें टी ट्यूब में पेशेंट के डेथ के समय पे 75 ml या शायद 100 ml के करीब कलेक्शन था, और टी ट्यूब में 5 to 10 ml का सेरोसैंग्विनस फ्लूइड था, जो कि जस्टिफाई करता है कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं था। मेरा बस रिक्वेस्ट इतना ही है आप सबसे कि ये जो भी हुआ हादसा पेशेंट के साथ, इसको बिना पूरी तरह से जाने हुए किसी भी डॉक्टर को या किसी को भी ऐसे आरोप करना से अच्छा है कि आप पूरी बातों को जानें और फिर उस पर जो भी प्रतिक्रिया है वो करें। অন্যদিকে মৃতার এক আত্মীয়ের অভিযোগ যে 1,30,000 টাকা দেওয়া হয়েছে নার্সিংহোমে, তার কোনো বৈধ রসিদ দেখাতে পারেনি খুকুরানির আত্মীয় স্বজন। অপারেশনের আগে শুধুমাত্র 20,000 টাকাই দেওয়া হয়েছিল সেই বেসরকারি নার্সিংহোমকে। তার রসিদ ছিল খুকুরানির আত্মীয়ের কাছে। जैसा कि मैंने बोला, ये सिर्फ गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं है, ये गॉल ब्लैडर और पित्तनली का ऑपरेशन है, और इसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 6-7 दिन तक रहने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो वो उसके हिसाब से इसका कॉस्ट गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के कॉस्ट से ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने एक एस्टीमेट दिया था कि आपको 1 लाख 1.25 लाख तक टोटल खर्चा जा सकता है, हर तरह का टेस्ट और ब्लड टेस्ट और मेडिसिन और सब तरह का खर्चा मिला के। और जैसा कि मुझे मैनेजमेंट से, नाइटिंगेल के मैनेजर और मैनेजमेंट के थ्रू जो जानकारी है कि पेशेंट ने 20,000 रुपया ऑपरेशन के पहले जमा दिया था, और किसी तरह का कोई पैसा हॉस्पिटल ने नहीं लिया है, और वो 20,000 रुपया भी हॉस्पिटल और मैनेजमेंट के तरफ से उनको ऑफ़र किया गया कि आप चाहो तो वापस ले सकते हो। इसका पुख्ता सबूत है। যে কোনো রোগীর মৃত্যুই দুঃখজনক, তবে রোগীর মৃত্যুর পর ডাক্তারকে দায়ী করে অভদ্র ব্যবহার বা মিথ্যে তথ্য দিয়ে ডাক্তারকে বদনাম করার প্রয়াসে রাজ্যে অন্তত নতুন নয়। নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, দুরন্ত টিভি।